Write this question in your notebook. So in this question it is given that ABC are in AP. What does it mean? इसका मतलब है D कॉमन डिफरेंस सेम होगा. अगर मैं B में से A को माइनस करूं तो ये कॉमन डिफरेंस आएगा, और मैं C से B को माइनस करूं तो वो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और ये सेम होगा. इससे मुझे यहां मिला, इफ आई टेक दिस B on this side, so 2B is equal to A plus C. So this is the given expression, this is the meaning of this line. ABC are in AP means 2B equal to A plus C. Now we have to find out this value, the value of this determinant. So what to do in this? एक ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 टेंस टू रो 1 माइनस रो 2 and रो 2 टेंस टू रो 2 minus रो 3. So what will happen then? So जो पहला एलिमेंट होगा x माइनस 3, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 2a माइनस 2b. यहाँ पे ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2b माइनस 2c. And it's x plus 4 as it is, x plus 5 as it is, x plus 2c as it is. Right. Now let us use the given data. जो गिवन डाटा है उसको यूज कर लेता हूं. उससे पहले कुछ ऑपरेशन एक अप्लाई कर लेता हूं यहाँ पे. सो उससे ये टर्म्स जीरो हो जाएंगी. सो आई कैन अप्लाई द ऑपरेशन C1 माइनस C2 एंड यही ऑपरेशन अप्लाई कर लेता हूं. After that, after applying this operation, I have obtained this determinant as it's become 0, it's become 0, and it's become x x cancel, it's become minus 1. So minus 1 x plus 5. And let me use the given data. 2b क्या दे रखा है मुझे इन्होंने? 2b मेरे पास यहाँ पे है 2b is equal to a plus c in this case. So let me put it here. So if I put it here, 2a minus, it become 2a minus a minus c. If I put it here, a plus c minus 2c, and it's x plus 2c, right? Now solve it and expand it. इसको सोल्व कर लेते हैं और एक्सपेंड कर लेते हैं. अलोंग विच रो और कॉलम आई शुड एक्सपेंड इट? किसके अलोंग मुझे एक्सपेंड करना चाहिए? एनीवन, कुड यू प्लीज टेल मी? Sir, column 1. Yes, column 1. Why? Sir, because there are 2 zeros. Yes, absolutely right. Because there are 2 zeros. So इसके अलोंग एक्सपेंड करना आसान होगा. प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस 1 आया, और इस दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, सो इट्स माइनस a plus c. Then put minus sign. This multiplied with this a minus a minus c, right? So then this c cancel this c, a cancel this a. It comes out to be minus 1, right? No, it's not minus 1. Minus 1 into 0 equal to 0. So 0 is the right option in this case. I hope this question is clear to you all. So you can solve like this. First you have to simplify it little bit, and then use this condition 2b equal to a plus c. Then you will get the answer. Now let's move to the next question. Look at this question number 18 here. And these MCQs type questions are important this time. If x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of this matrix A is. So we need to find out the inverse of this matrix A. So which is the right option? Which is the right option here? So to find out the A inverse, we need the two things. What are that two things are? Determinant of A and adjoint of A. Right? So what is the determinant of A in this case? If you expand it along row 1, so hide this, it equal to x, y, z, right? And if you find out the adjoint find करने के लिए हमें क्या चाहिए? Cofactors.
सो कोफैक्टर्स आप मुझे फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे कोफैक्टर इसका फाइंड करें, पहला कोफैक्टर आएगा yz, which is the first cofactor is, if you hide this and this, so you get y into z. So this is the first cofactor. What is the first cofactor? It's yz, right? I hope this thing is clear to you. It's yz. First cofactor is yz. Yes, sir. Okay. Then like this you can find it, and I don't think so in MCQ type questions you have to find out the other cofactors. I do not think so we need it. हमें ऑप्शन पकड़ना है, तो ऑप्शन देखिए कैसे पकड़ेंगे, एक ही से आ जाएगा। अब यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना था, तो मुझे a इनवर्स इज इक्वल टू, लेट मी पुट द वैल्यूज हियर, इट्स 1 अपॉन एक्स वाई जेड, और यहां से मैंने लिया वाई जेड, और ये कुछ भी आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन चेक करते हैं, अगर इस वाई जेड को मैं अंदर भेज दूं, एक्स वाई जेड को अगर मैं अंदर भेज दूं, तो व्हाट इज दिस फर्स्ट एलिमेंट विल बिकम, yes, what is this first element? yz divided by xyz can be written as x inverse or not? Yes, sir. Okay, so x inverse आ रहा है। look at the options. x inverse किस में आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है। इसमें तो x इनवर्स नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इन दोनों में से किसको चूज करें? क्या बाहर कोई बचा? बाहर कुछ बचा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x इनवर्स आने पे? कुछ नहीं बचा। इसमें बाहर बचा, तो ये भी गलत है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अगर हम लोग एलिमिनेट करें, मतलब गलत आंसर्स को हटाएं, तो सही पे हम लोग पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द पार्ट ए इज द राइट आंसर। नो नीड टू सोल्व इट इन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सारे कोफैक्टर्स आप फाइंड करें और फिर उसको चेक करें और फिर पूरा आंसर एग्जैक्टली मैच कराएं, एंड इट टेक योर टाइम एंड यू गेट 1 marks only for this work, right? I hope this question is clear to you all. Now look at this question number 19 here. Let a is equal to 1 minus sin theta minus 1 sin theta 1 minus sin theta 1 1 sin theta 1, where theta is in between 0 to 2 pi. Then determinant of a 0 होगा, determinant of a 2 से infinite के बीच में होगा, या 2 से 4 के बीच में होगा, या 2 और 4 को भी इंक्लूड करते हुए उनके बीच में होगा। सो फाइंड कर लेते हैं, डेटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो डेटरमिनेंट ऑफ ए इज, सो इट इज द डेटरमिनेंट हियर 1 sin 1 minus sin 1 sin minus 1। एक ऑपरेशन लगा लूं तो थोड़ा इजी सा हो जाएगा। रो 1 को अगर कर लूं, रो 1 प्लस रो 3, तो ये डेटरमिनेंट बन जाएगा मेरे पास 0। इसको इससे ऐड करूंगा, इसको इससे ऐड करूंगा तो 0, और ये हो जाएगा 2, और सारी चीजें सेम रहेंगी। माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। सो लेट अस एक्सपेंड इट। इसको एक्सपेंड कर देता हूं, तो एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये आएगा 2, हाइड करेंगे रो कॉलम, तो इट साइन इनटू साइन विल बिकम साइन स्क्वायर, and minus, and it's minus 1 sin square plus 1. So this is the determinant. अब आप मुझे बता सकते हैं जो साइन की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक लाई करती है? sin theta is lying between the value of the sin theta 0 to 1. no 0 से 2 pi. 0 से 2 pi। I am not talking about angle, I am asking the value of sin theta। जो sin theta की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक आ सकती है? जैसे sin थीटा की वैल्यू 1/2 भी होती है, √3/2 भी होती है, 1 भी होती है, 0 भी होती है। 0 से 1. 0 से 1 है कोई? इज देयर एनीवन, इज देयर? Sir, 1 to minus 1. Sir, -1 to 1. -1 to 1। ओके, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, सान्या बिल्कुल सही बता रहे हैं, जयेश भी सही बता रहे हैं। -1 से 1 तक इसकी वैल्यू होती है, राइट? सो इट्स वैल्यू इज फ्रॉम -1 to 1। ये आपको पता होना चाहिए।
इफ साइंस के स्टूडेंट हैं अगर आप एंड तो आपको ये बिल्कुल डेफिनेटली ये पता होनी चाहिए बात. साइनोसॉइडल फंक्शन if you look at this function is in this form. और ये फंक्शन क्या है, ये if you are using this phone, if you are using this your system or laptop to attend the class, so they need power, electricity charging के लिए. So this electricity move in the form of sine signal. तो जो sin थीटा होता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी भी उसी की तरह मूव करती है. Alternating current moves like this. So this is the value of sin theta and it's always maximum value is always 1. तो 1 तक जाता है फिर नीचे भाग के और मिनिमम इसकी वैल्यू -1 होती है. तो मिनिमम ये -1 तक जाता है और मैक्सिमम 1 तक. देखो ऊपर की तरफ जाएगा और 1 से फिर नीचे की तरफ आना शुरू करेगा. -1 तक जाएगा मिनिमम, फिर ऊपर आना शुरू करेगा. 0 होगा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर रुक जाएगा 1 पे. 1 से फिर नीचे आना शुरू करेगा, फिर -1 पे रुक जाएगा. सो इट्स मूविंग बिटवीन -1 एंड 1. तो साइन की वैल्यू ठीक है. अब साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो ये -1 है, -1 से 1 है. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? -1. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1. और एक साइन की वैल्यू 0 भी होती है, राइट? सो साइन वैल्यू इज 0 ऑल्सो. एंड लेट अस पुट इट हियर. अगर मैं साइन को 0 लूं इसमें तो डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? इफ साइन थीटा इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट? It's 2. 0 square plus 1 is equal to 2, right? And if I take sin theta is equal to 1, अगर मैं 1 लूं sin theta की वैल्यू, so अगर 1 लेता हूं तो its determinant of A is 2. 1 square is 1 plus 1, it comes out to be 4. तो अब आप मुझे ये बताइए sin की वैल्यू, look at this very important concept here. So this sin square value, the minimum value of this sin square, what is the minimum value of this sin square theta? जो स्क्वायर वाली टर्म है वो कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं. स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, ठीक है? तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? एनीवन, कुड यू प्लीज टेल मी? 0. यस, ये 0 आ सकती है. मिनिमम इसकी वैल्यू 0 आ सकती है क्योंकि स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? अब मैक्सिमम साइन की वैल्यू 1 होती है तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1. So I hope if this concept is clear to you, what I want to say, what I want to explain here. तो इसका जो आंसर आएगा वो Yes, आएगा sir. 2,4 और ये क्लोज ब्रैकेट में होगा. 2 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, राइट? सो जो डेटरमिनेंट ए की जो वैल्यूज हैं दैट इज in between 2 and 4 and 2 and 4 is also included. So which is the right option here? D is the right option, right? और ये देखो open bracket and close bracket. I hope you all know about these brackets, this open bracket and this close bracket. Close एक बार और बता देता हूं मैं, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था. क्लोज ब्रैकेट में अगर 2 और 4 लिखा हुआ है तो 2 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है. और अगर ओपन ब्रैकेट में 2 और 4 लिखा हुआ है तो 2 और 4 को नहीं लेंगे. आ रही है बात समझ में? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो साइनोसॉइडल वेव की तरह ही हमारा जो घर में जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो भी साइन सिग्नल की ही फॉर्म में मूव करती है, साइन वेव की तरह. जो साइन थीटा होता है इसी वेव में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आ रही है इसी में हमारा यहाँ पे होता है. एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी, जो घर में कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है ये सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है? पैरेलल में होता है. पैरेलल में क्यों? AC. एसी तो करंट आता है, एसी करंट आता है. एक डीसी भी होता है, डीसी जो बैटरी से आता है. लेकिन ये पैरेलल में क्यों होते हैं सारे कनेक्शन? पैरेलल में इसलिए आता है कि अगर बाई चांस आप रुको दक्षित, आप बता सकते हैं जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है सारा ये पैरेलल में होता है, क्यों? सानिया मलिक. सर शायद क्योंकि सर अगर घर में अगर एक फ्यूज हो जाए तो सारे एप्ली जो भी उससे कनेक्टेड है वो अफेक्ट ना हो, शायद, सर पता नहीं. हाँ सही बता रही हैं आप. अच्छा.
हर्ष उपाध्याय भी ये बताना चाह रहे हैं, इसमें क्या ना, सीरीज में जब अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। ये सीरीज में ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगे हुए हैं, और पैरेलल में ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पे। एक फ्यूज हो गया तो उससे और चीजों पे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप फैन खराब हो गया तो सारा घर में सारी लाइट बंद हो जाएंगी अगर सीरीज में होगा कनेक्शन। अच्छा, ये लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था साइन सिग्नल को देख के, मैंने 5-6 साल गुजारे हैं सिग्नल के साथ, तो इसलिए मैं इधर उधर भटक गया था। ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक, लुक एट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। ओके, सो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। So this is all about this exercise. I hope you understood the questions that we have discussed in this miscellaneous exercise.